मेहनत को सफल कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना ना भूलिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उसे शेयर जरूर करें। थैंक्स। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब नेशनलिज्म की शुरुआत यूरोप में कैसे हुई? इफ़ यू लुक एट द मैप एंड मिड 19th सेंचुरी, अगर आप मैप देखते हो 19th सेंचुरी का यूरोप, यू विल फाइंड दैट देयर वर नो नेशन स्टेट एज वी नो दैम टुडे। और आप देखोगे जो नेशन स्टेट के बारे में वो पहले नहीं थे। व्हाट वी नो टुडे एज जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड वेयर डिवाइड इनटू अ किंगडम, डचेस, कैंटोन्स मीन्स होता है अ सब डिवीजन ऑफ कंट्री established for a political and administrative purpose, whose ruler and their autonomous means होता है having the freedom to govern itself territory. Eastern and Central Europe were under autocratic means होता है relating to ruler who has absolute power. Monarch within the territory of which lived deserved people. They did not see themselves as sharing a collecting identity or a common culture. Often they even spoke different language and belonged a different ethnic group. The Habsburg Empire that ruled over Austria-Hungary, for example, was a patchwork of many different regions and people. It includes the Alpine region. तो जो हैब्सबर्ग एम्पायर था वो ऑस्ट्रिया, हंगरी और बहुत सारे रीजन, छोटे छोटे रीजन मिला के बना था. The Tyrol, Austria, and as well as Bohemia, where the aristocracy and was predominantly German. और ये सारी कंट्री को जर्मन स्पीकिंग predominate कर रहे थे. It also include the Italian speaking provision of Lombardia and Vietnam in Hungary. Half of the population spoke Magyar, while the other half spoke varieties of dialect. In Galicia, the aristocracy spoke Polish. Beside these three dominant groups, there also lived within the boundaries of empire a mass of subject peasant people, Bohemia, Slovaks to the north, Slovenians in Carinoa, Crota to south, and Romans to seat of Transylvania. Such different did not easily promote a sense of political unit. और ये सारी जो कंट्री में आप political unit को properly promote नहीं कर सकते because of differences. The only type binding this diverse group together was a common allegation to the emperors. और ये जो है ये सभी को एक साथ बांधती थी because of जो rulers थे उनकी वजह से. How did nationalism and the idea of nation state emerge? The aristocracy and the new middle class. Socially and politically, a landed aristocracy was dominated class of the continent. The members of this class were united by the common way of life that cut across regional division. They owned state in countryside and also टाउन हाउस. ये जो लोग थे वो ओन करते थे कंट्री साइड के हाउसेज और टाउन हाउस में भी. दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी. और ये लोग स्पोक करते थे बोलते थे फ्रेंच. देयर फैमिली वेयर ऑफन कनेक्टेड बाय टाई ऑफ मैरिज. और इनकी जो फैमिली थी वो कनेक्टेड थी मैरिज के थ्रू. दिस पावर एट्रोक्रेसीज वाज हाउएवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप. और ये जो लोग थे वो छोटे छोटे ग्रुप में बटे हुए थे. देयर मेजॉरिटी ऑफ populations was made up by peasantry. To the west the bulk of the land was formed by tenant and small owners. और वेस्ट में छोटे छोटे जो tenants होते थे और small owner होते थे ना वो रहते थे. While in eastern and central Europe the patterns of land holding was characterized by the vast estate which were cultivated by serfs. Serfs means होता है ना agriculture laborers बाउंड बाय द फ्यूडल सिस्टम. और जो वेस्ट के साइड पे ना बल्क ऑफ लैंड्स होते थे पर छोटे लेबर्स होते थे. और सेंट्रल यूरोप में लैंड होल्डिंग जो होती थी वो एस्टेट के रूप में होती थी जिसमें सर्फ जो होते थे ना वो कल्टीवेट करते थे.
In western part of Central Europe, the growth of industrial production and trade meant the growth of town and the emergence of commercial classes whose existence was based on the production for the market. Industrialization began in England in the second half of the 19th century, but in France and part of German state it occurs only during the 19th century. और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो स्टार्ट हुआ था 18th सेंचुरी में, सॉरी सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, और फ्रांस में ये जो स्टार्ट हुआ था 19th सेंचुरी में. इन इट वेक न्यू सोशल ग्रुप केम इन टू बीन, और इसमें एक नया सोशल ग्रुप आया था और वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, और वो जो थे वो कौन थे, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड मिडिल क्लास मेड बाय ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन प्रोफेशनल्स. और ये जो मिडिल क्लास बने थे वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे और प्रोफेशनल्स थे. इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप दिस ग्रुप्स वर स्मॉलर इन नंबर, और सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप में ये जो ग्रुप थे वो बहुत छोटे नंबर में थे. टिल लेट 19th सेंचुरी, और 19th सेंचुरी तक इट वॉज अमॉन्ग द एजुकेटेड लिबरल मिडल क्लास दैट आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एब्लोजेशंस ऑफ एट्रोक्रेटिक प्रिविलेज गेन पॉपुलरिटी. और जो एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास थे उनका आइडिया जो था वो यूनिटी का, एब्लोजेशन मीन्स होता था एक्शन ऑफ एब्लॉइजिंग अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन. और वो चाहते थे जो एट्रोसिटी है उसको, उनकी जो प्रिविलेज होती है उनको हटाया जा सके. What did liberal nationalism stand for? Idea of national unity in early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism. Liberalism means होता है the holding of liberal view. The term liberalism derived from the Latin root liber, means free, and from new middle classes liberalism stood for freedom for the individual, equality of all before the law. और लिबरलिज्म से ये टर्म जो था वो हर एक पर्सन को इक्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए ये वर्ड स्टार्ट हुआ था. पॉलिटिकली इट इन्फिसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय ए कंसेंट. पहले तो ये गवर्नमेंट के लिए यूज़ किया जाता था. सिंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लेरिकल प्रिविलेज, और कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट. 19th century liberal also stressed the inviolability of private property. और 19th century के जो liberal थे वो ये भी चाहते थे कि जो private property है उनको भी inviolability किया जाए, हटाया जाए. Yet equality before the law did not necessarily stand for universal suffrage. You will recall that in revolutionary France, which marked the first political experiment in liberal democracy, the right to vote and to get elected was granted exclusively to property owning men. और जो प्रॉपर्टी ओनिंग पीपल थे उन्हीं को जो है ना वोट का हक मिला था. ठीक है. मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन वेयर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट. और जो मैन जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी और वुमेन उनको एक्सक्लूड किया गया था वोट करने से. ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबिन डिड ऑल एडल्ट मेल इंजॉय सरफेस. और जैकोबिन में ही जो है ना एडल्ट मेल्स को है ना वो इंजॉय करते थे वोटिंग को. However, the Napoleonic Code went back to limited suffrage and reduced women to status of minor subject to the authority of father and husband. और नेपोलिक कोड की वजह से क्या हुआ, वुमेन की जो स्टेटस थी वो माइनर से अथॉरिटी हो गई फादर और हस्बैंड की. थ्रू आउट द 19th and early 20th century women and non-propertied men organized opposition movement demanding equal political right. और 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी के अर्ली में है ना वुमेन्स जो है ना उन्होंने भी अपने लिए इक्वल प्रॉपर्टी राइट मांगना स्टार्ट किया. नॉन प्रॉपर्टी मैन जो थे उन्होंने भी अपोजिशन स्टार्ट किया इक्वल राइट के लिए. इन द इकोनॉमिक स्फीयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड एब्लिशन फॉर स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड एंड कैपिटल. ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस इज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ इमर्जिंग मिडिल क्लास. और 19th सेंचुरी में बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड हुआ मिडिल क्लास का. लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ द जर्मन स्पीकिंग रीजन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी. नेपोलियन administrative measures had created out of countless small
principality confederation of 39 states. Each of these possesses its own currency and weight and measures. Merchants traveling in 1833 from Hamburg to Nuremberg to sell his good would have had to pass through 11 custom barrier and pay a custom duty of about 5% at each one of them. जो मर्चेंट्स ट्रैवल करते थे 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरबर्ग में, तो उनको 11 कस्टम ड्यूटी बैरियर से पास होना पड़ता है और 5% जो होता था वो अपने कस्टम जो थिंग्स होते थे उनको उसके ऊपर देना पड़ता था. ड्यूटी वेयर ऑफन लाइव्ड अकॉर्डिंग टू द वेट और द मेजरमेंट ऑफ द गुड्स, और उसकी जो ड्यूटी है मतलब उस पर कितना टैक्स लगेगा वो उसके गुड्स पे डिपेंड करती थी. एज ईच रीजन हैड इट ओन सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर दैट दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन, और हर एक रीजन का अलग वेट और मेजर था. इसकी वजह से जो टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता था इसमें कैलकुलेशन में. द मेजर ऑफ क्लोथ फॉर एग्जाम्पल was Ali, which is each region stood for different length. और मेज़र होता था क्लोथ को एली में जो हर एक रीजन में अलग होता था. एली ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल बॉट इन फ्रैंकफर्ट वुड गेट यू 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ, आपको इतना मिलेगा. वहीं मेनेज में 55.1 सेंटीमीटर होगा वो, और न्यूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर, इन फेरीबर्ग मीन्स होगा 53.3 सेंटीमीटर. इतना डिफरेंस हो जाता था. सच कंडीशन वेयर व्यूड ऑब्स्टिकल टू इकोनॉमिक एक्सचेंज, और इसकी वजह से इकोनॉमिकली एक्सचेंज नहीं हो पा रहा था. एंड ग्रोथ बाय द न्यू कमर्शियल क्लासेज हु आर्ग्यू फॉर द क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी अलाउइंग द अनहिंड्रेड मूवमेंट ऑफ गुड पीपल एंड कैपिटल. और फिर क्या हुआ, पीपल ने आर्ग्यू किया कि हमें एक ऐसा हु आर्ग्यू फॉर द क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड, और उन्होंने एक ऐसा इकोनॉमिक टेरिटरी हु आर्ग्यू फॉर द क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी, और उन्होंने आर्ग्यू किया कि उनको एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी मिलनी चाहिए जो गुड्स और पीपल्स को और कैपिटल को मूव करे. In 1834, a custom union or Zollverein was formed at initiative of Prussia and joined by most of the German states. The union abolished tariff barrier and reduced the number of currency from over 30 to the creation of new network of railway further stimulated mobility, harnessing economic interest to the national unification. A wave of economic nationalism strengthened the wider nationalist sentiment growing at the time. और उसके बाद जो वेव था कि नेशनलिज्म जो स्ट्रेंथ होना चाहिए वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट में, वो ग्रो हो रहा था उस टाइम तक. अ न्यू कंजर्वेटिव आफ्टर 1815. Following the defeat of Napoleon in 1815, European governments were derived by the spirit of conservatives. Conservatives believed that established traditional institutions of state and society like the monarchy, the church, social hierarchy, property and the family should be preserved. Most conservatives, however, did not propose a return to the society for pre-revolutionary day. बहुत सारे जो कंजर्वेटिव्स थे वो चाहते थे कि सोसाइटी को वेल डेवलप करने के लिए जो चर्च हो, सोशल हायरार्की हो, property and family should be preserved. Most conservative, however, did not propose return to the society of pre-revolutionary days, और वो नहीं चाहते थे कि वापस से pre-revolutionary days में वो society जाए. Rather, they realized from the change initiated by Napoleon that modernization could in fact strengthen the tradition institution like the monarchy. It could make state power more effective and strong. A modern army and efficient bureaucracy, a dynamic economy and the abolition of feudalism and serfdom could strengthen the autocratic monarch of Europe. और वो चाहते थे कि ये सब चीज़ों की वजह से जो ऑटोक्रेटिक मोनार्की है उनको
यूरोप में स्ट्रेंथ मिले। इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूरोपियन पावर ब्रिटेन, रशिया, क्रोएशिया, ऑस्ट्रेलिया हु हैड कलेक्टिव डिफीटेड नेपोलियन मीट एट वियना टू ड्रॉ अप अ सेटलमेंट फॉर अ यूरोप। और उन्होंने यहाँ पे ये सारी कंट्री एक साथ वियना में मिली सेटलमेंट के लिए यूरोप में। द कांग्रेस वॉज हॉस्टेड बाय द ऑस्ट्रेलियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। The delegates drew up the territory of Vienna of 1850 with the object of undoing most of the change that had come about in Europe during the Napoleonic War. The Bourbon dynasty, which had been deposed during the French Revolution, was restored to power, and France lost the territory and it had annexed under the Napoleon. और बर्बन डायनेस्टी जो थी वो डिपोज हो गई और फ्रांस रेवोल्यूशन जो है वो रिस्टोर हो गया। एंड फ्रांस जो थी वो टेरिटरी इट हैड एनेक्स अंडर नेपोलियन, और वो फ्रेंच नेपोलियन ने उस पर कब्जा कर लिया। A series of states were set up on the boundary of France to prevent French expansion in future. Thus, the Kingdom of Netherlands, which include Belgium, was set up in the north of Genoa, was added a Piedmont in south. Prussia was given important new territory on its western frontier, while Austria was given control of northern Italy. But the German Confederation of 39 states that had been set up by Napoleon was left untouched. और ये जो स्टेट थे जर्मन के वो अनटच थे। In the east, Russia was given a part of Poland, while Croatia was given a portion of Saxony. और रशिया ईस्ट रशिया का जो पोलैंड का पार्ट था वो रशिया वॉज गिवन अ पार्ट ऑफ पोलैंड, रशिया को पोलैंड का पार्ट मिला और प्रूशिया को सेकंड का। The main intention was to restore the monarchy that had been overthrown by Napoleon and create a new conservative order in यूरोप। और वो मेन इंटेंशन था कि वो मोनार्की को ख़त्म करे और ओवरथ्रोन करे नेपोलियन को। कंजर्वेटिव रेजिम सेटअप इन 1815 वेयर ऑटोक्रेटिक, दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट एंड soft to curb activity that questions the legitimacy means होता है ability to be defend with the logic of autocratic government. Most of them imposed censorship laws to control what was said in newspaper, book, plays and song and reflect the idea of liberty and freedom. और कंजर्वेटिव जो थे वो जो भी आइडियाज़ होते थे पीपल्स के उनको वो कर्व कर लेते थे, उनको बुक्स में प्ले न्यूज़पेपर में जो भी चीज़ें उसको वो फ्री नहीं होने देते थे, फ्रीडम प्रोवाइड नहीं करते थे। Associated with the French Revolution, the memory of the French Revolution nonetheless continued to inspire liberal। और जो memories थी French Revolution की वो बहुत सारे लोगों को inspire कर रही थी। One of the major issues taken by the liberal nationalists who criticized the new conservative order was freedom of press। और जो मेजर इशू था लिबरल नेशनलिस्ट का वो कि जो कंजर्वेटिव और जो है वो जो प्रेस की फ्रीडम है वो नहीं दे रहे थे। द रेवोल्यूशनरीज ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग 1815 द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रॉप मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरगो सीक्रेट सोसाइटी sprang up in many European states to train revolutionaries and spread their ideas। सीक्रेट सोसाइटीज बनने लगी और वो लोग अपने आइडियाज़ को स्प्रेड करने लगे। टू बी revolutionary at this time meant to commitment to oppose monarchical form that had been established after the Vienna Congress। और अगर आप रेवोल्यूशनरी हैं इस टाइम पे तो इसका मतलब है कि आप मोनार्की है जो उससे उसको आप उसके अपोज में हैं। and to fight the liberty and freedom. Most of this revolutionary also saw the creation of nation state as a necessary part of this struggle for freedom। और बहुत सारे revolutionaries जो थे उन्होंने नेशन स्टेट एज वो चाहते थे कि नेशन स्टेट बने, ठीक है, फ्रीडम के लिए। वन सच इंडिविजुअल वाज द इटालियन रेवोल्यूशन जियोस्पा मैजिनी।
Born in Geneva in 1807, he became a member of secret society of the Carbonari as a young man of 24. और जियोस्पा मैज़नी जो थे वो भी एक ऐसे ही रेवोल्यूशनरी थे जो 1807 में जिनेवा में पैदा हुए थे और उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनरी में ज्वाइन किया था. एज अ यंग मैन ऑफ 24 ही वॉज सेट इनटू एक्सिल इन 1831 for attempting the revolutionary Liguori. He subsequently founded two more underground society, first Young Italy in Marseilles and then Young Europe in Bern, whose members were like-minded and young men from the Poland. और उनको एक और दो सोसाइटी मिली जिसके मेंबर्स जो थे वो यंग मैंस थे पोलैंड, फ्रांस एंड इटली एंड जर्मन स्टेट, और इन सारे स्टेट से वो बिलोंग करते थे. यंग मैंस फ्रॉम पोलैंड मैज़नी बिलीव दैट अ गॉड हैड इंटेंड नेशन टू बी अ नेचुरल यूनाइट ऑफ मैनकाइंड. और वो बिलीव करते थे कि गॉड ने सबको एक टाइप की फ्रीडम दी है, इक्वालिटी दी है. सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी पैच वर्क ऑफ ऑल स्टेट एंड किंगडम. It had to be forged into a single unified republic within a wider alliance of nations. This unification alone could be the basis of Italian liberty. और ये जो यूनिफिकेशन था वो एक अकेला था इटालियन को लिबर्टी के लिए. फॉलोइंग हिज मॉरल सीक्रेट सोसाइटी वे आर सेटअप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड. और इसके मॉरल को लेते हुए यहाँ पे भी सीक्रेट सोसाइटी बनी. मैज़नी रिलेटलेस मीन्स होता है हार्श and opposition to monarchy and his vision of democratic republic frightened the conservative. और वो चाहते थे कि जो मोनरिच है वो ख़त्म हो और इससे जो कंजर्वेटिव्स थे वो डरे हुए थे. Metternich described him as the most dangerous enemy of our social order. Metternich जो थे वो डिस्क्राइब करते थे कि वो सबसे डेंजरस एनमी हैं अपनी सोसाइटी के लिए. द एज ऑफ रेवोल्यूशन कितने टाइम तक रहा? 1830 to 1848. As a conservative regime tried to consolidate their power, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolution. और ये सारी चीज़ें भी रेवोल्यूशन के साथ एसोसिएट हो रही थी. इन मैनी रीजन ऑफ यूरोप सच एज इटालियन एंड जर्मन स्टेट, द प्रोविजन ऑफ ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड एंड पोलैंड, दिस रेवोल्यूशन वेर लीड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट बिलोंगिंग टू द एजुकेटेड मिडिल क्लास एलिट among whom were professional, school teacher, clerk and member of the commercial middle class. और ये सारे पीपल जो थे वो इस नेशनलिस्ट रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे. द फर्स्ट अपहेवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1813. पहला जो अपहेवल मीन्स होता है वायलेंट वायलेंस जो होता है वो स्टार्ट हुआ 1830 में. द बॉर्बन किंग हु हैड बीन रिस्टोर्ड टू पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शन आफ्टर 1815 वे नाउ ओवरथ्रोन बाय द लिबरल रेवोल्यूशनरी हु इंस्टॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विथ लुइस फिलिप एज इट हैड. और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल conservatives reaction 1853 were now overthrown by liberal revolutionary. और liberal revolutionary ने उनको हटा के लुइस फिलिप्स को हेड बना दिया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का. व्हेन फ्रेंच स्नीज मेटरिंच एंड वंस रिमार्क द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैच कोल्ड. और ऐसा बोला जाता था कि अगर फ्रांस को वो छींकता था तो रेस्ट ऑफ यूरोप को भी कोल्ड हो जाता था. द जुलाई रेवोल्यूशन स्पार्क एन अनराइजिंग इन ब्रुसेल विच लीड टू बेल्जियम ब्रेक अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड. और इसकी वजह से जो बेल्जियम था वो ब्रेक हो गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से. An event that mobilized nationalist feeling among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence. और जो इवेंट नेशनलिस्ट फीलिंग लाती है वो जो था वो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था. ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी. और ग्रीस जो था वो पार्ट था ऑटोमन एम्पायर का 15th सेंचुरी तक. The growth of revolutionary nationalism in Europe spark of struggle for independence amongst the Greek which began in 1821. Nationalists in Greece got support from other Greek living exile and also from many West European who had sympathies for an ancient Greek culture.
poet, artist, lauded Greece as the cradle of European civilization and mobilized public opinion to support its struggle against a मुस्लिम एम्पायर। और ये सारे लोग जो है मिलकर सपोर्ट ले रहे थे मुस्लिम एम्पायर के अगेंस्ट। द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बैरन ऑर्गेनाइज्ड फंड एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वॉर। और इंग्लिश पोएट लॉर्ड बैरन जो थे उन्होंने फंड ऑर्गेनाइज किया और उन्होंने वॉर में भी फाइट किया। वेयर ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824, वहाँ पे उनकी डेथ हो गई। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कैंस्टिनोपल ऑफ 1832 रीऑर्गेनाइज एंड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। और जो ट्रीटी थी वो रीऑर्गेनाइज हुई और फिर ग्रीस को इंडिपेंडेंट मिली।